Over to you, sir. Welcome students on this holiday. You are here. That shows your interest also, and you are not simply students. I think you are basically scholars. So you know the nuances of education. Each moment one should learn. That habit I cultivated. I am still a learner, Vidyarthi of Woods. So when we are having this Ram Mandir ceremony on 22nd January, I am reminded of Ramayana and Mahabharata. These two epics have also dealt with medicinal plants. So which were the trees and other plants, even climbers, which Rama and Sita and Hanuman or Sugriv, they dealt with or they talked about. And that is the documentation in the Valmiki Ramayana. If you are well versed or you have gone through, then you will come to know they visited the different locations which exist today also. When they started from Ayodhya, they first stop was at Chitrakoot. It is still there. You can go. Then there was another location, Dandak Aranya. That is still there. You can go. Some part of Madhya Pradesh, some part of Chhattisgarh and even Andhra Pradesh. And another place was in Maharashtra, Panchvati. And what itself is nothing but a fig tree. So Ficus bengalensis and Ficus religiosa. Not only that, even your Plakhi or Plaksh or Pakad. That is Ficus virens, white fig tree, which is growing in Jammu. So that was also there. That's the Panchvati. Not only that, before invading Sri Lanka, going there after the abduction of Sita, the tree which Rama worshipped, that is also very, very auspicious tree for us. That is Shami tree. Shami in Dogri we call it as Jand. And there's a village in Jandi also. Although I couldn't visit that village so far. But I think some people must have some kind of connectivity to that distant Rajasthan. Where this Shami tree, Prosopis cinerea, is state tree of Rajasthan. But the Bishnoi community laid their lives, more than 273 persons are, as per documentation or history says, they laid their lives while protecting the trees of Prosopis cinerea, locally called as Khejdi. And there is still a village named after this tree, Khejdi Gaon, near Jodhpur. And it was on the instructions of Abhay Singh, the king, who asked for some wood. So people went there and they started felling the Prosopis trees. And there Amrito Devi started that resistance movement. And which was that year? 1730. Can you imagine when we don't have these ecological concerns and biodiversity problems, and still our people had that guts, or you can say the love for trees, and they laid lives even while protecting the trees. That is the history. But recently, last month, I was in UAE, United Arab Emirates, and this is the national tree of UAE, that Muslim arid tract, because it is the symbol of the desert conditions. So in Rajasthan Thar desert, we have this Prosopis cinerea, Shami, Jand, and the same tree under the name Gaf tree. In Arabic language, it is called a Gaf tree. I was really amazed. It has been so much revered and highly protected tree. It was from Dubai to Abu Dhabi, United Arab Emirates, both sides on the roads, they have the special plantation of this tree, which I couldn't see so far in India. Maybe we have planted 2-3 trees somewhere. But along the national highway, they have given that much respect to this tree. Because this is a nitrogen fixing tree. Pods are edible under the name Sangri in Rajasthan. I don't know what they call in Arabic. But this is the one tree which can revolutionize the desert ecology. If you really want to reclaim the desert conditions and bring some kind of greenery, then this is the first tree. As in, they have aptly declared it as the national tree of UAE. After the formation of Telangana, this is also the tree of, state tree of Telangana, under the name Jami tree. So this was the tree which Lord Rama is supposed to have worshipped. And once he entered Sri Lanka, there was a Vatika, Ashoka Vatika, Sarika Ashoka. That tree also I will be showing today. It is there. You must have already seen Sarika Ashoka. That is also there. That was the Vatika. And not only that, Hanumana also appears on scene, and you have so many Hanuman Phal, Ram Phal, Lakshman Phal, Sita Phal. And all these, mostly they belong to Anonaceae family. Sita Phal, Anona squamosa. Then you have the Lakshman Phal, Anona reticulata. Then you have
Ramphal also. I think Annona reticulata is Ramphal perhaps. And another species, Annona cherrymolia or some other species. All these belong to Annona species and which are sold in the markets. So not only this, Vaidya Sushen, when there was Lakshmana fell unconscious, so there was demand of some herbs. So Vaidya Sushen asked the Hanumana, it is written in the record, perhaps he went to Dronacharya hills. They are still there in South India. I thought they must have come to Himalayas, but Dronagiri. So whatever, but there were the mention of 4 particular medicinal plants. So each one of us must, at that time you have not this botanical nomenclature. There was no Linnaeus. This is an age-old 1000 BC. So safely you can say more than 3000 or 5000 year old Treta Yuga time. So no modern science, no binomial nomenclature. So they had their Sanskrit names. So you should be familiar with those names which have been mentioned in the Valmiki Ramayana. So there was a mention of Vishalya. One plant is named as Vishalya. What is that plant? It is Gloriosa superba, as in botany we know. And this particular tree, not a tree, this is a climbing herb from the Manukat family. And this particular plant is the national flower of Zimbabwe presently, Gloriosa superba. And this is the state flower of Tamil Nadu. Not only that, this is the source of colchicine. As Professor Bilal Ahmed Khan, coming from not Khan, I'm so sorry for that. I sometimes he has another plant in Kashmir, which is called as Virkyom. In Kashmiri language, Virkyom. And Majur's poetry has mentioned this plant, Tekbatne and this Virkyom. These 2 flowers are so enchanting in the landscape of Kashmir. Which are those 2? We should know. Virkyom is Colchicum luteum and Tekvatne. I was having a lot of confusion, even many Kashmiris, but ultimately it became one of the anemone. This is anemone and Taschanjay, very difficult. A Russian person has given it a name. It's very difficult to pronounce here. Taschanjay, species name. But this is a kind of anemone from the family Ranunculaceae, which has been named as Tekvatne. So if you focus on the flower design, you will find a kind of tikka the ladies used to have. Tekvatne. Batne is also Kashmiri lady. So that is also the source of colchicine. You listen to me because these will be available to you every day. I will not be available. So 2 plants. Tekvatne I told, anemone. Anemone, Taschanjay, Tschernjae. You will find exact spelling. Earlier it was named as perhaps bicolor, but more taxonomy and more molecular researches, they said no, this is another species which is Russian named as anemone Taschanjay, Tekvatne. So colchicine I was referring to Vishalya. Vishalya is also source of colchicine. And colchicum is also source of, see God's, you can say the balance. For mountains, temperate region, they have given you the Colchicum luteum. Those who don't have those snow and the equatorial region, they have given the Gloriosa superba. These are both reputed medicinal plants. Not only this. Colchicine, you know by what for it is used? Actually, even in cell biology, mitotic spindle also. But I am just rushing through the different plants which the Valmiki Ramayana has mentioned. Because even if I start talking about one plant, then it will be, time will be over. So other plant was Sanjeevani, Mrita Sanjeevani, which has the capability to bring to life even a dead person. That may be exaggeration, but whatever. Which was that Sanjeevani? So again, it's very difficult to say, but one thought is that it is Selaginella bryopteris, which personally speaking I don't agree. Because this is a resurrection plant. In summer scorching heat, it will die down, and the moment you have the monsoon showers, it will come to life again. Only this is the quality of this particular plant. Then it's okay, Sanjeevani. But Sanjeevani having really miraculous medicinal qualities, which can bring a dead person to life. That cannot be this. So another plant, which from mountains, even our Prime Minister talked about that plant. That is the Ladakhi plant or alpine cold desert plant, which is rhodiola. Rhodiola rosea, rhodiola. So many species which are still
edible, developed into cuisines by the Ladakhis under the name thukpa, a kind of soup they developed. So this particular plant has lot of health benefits. So it may be rather than the Selaginella bryopteris. Whatever is very difficult to go into that. But we have another mention of some more trees under the Sanskrit names. What were those? We should know few of them. For example, they talked even about this Saptaparana, this Alstonia. And another plant, Divya. We have one Professor Yashpal Sharma, have two girls, daughters. One is Divya, another Bhavya perhaps. So there is Bhavya. Is also one name for the tree, which has been mentioned by Valmiki's Ramayana. Dhairya and Bhavya, okay. Dhairya, not Bhavya. No, Bhavya is there. Divya. Bhavya, yes. So Bhavya is also the name of Dalinia indica. This tree is also growing in your botanical garden. I will show you. Otherwise, it's called as elephant apple. And while visiting Tripura, I was served the first time, it's a chutney. And the name was very fascinating. In their language, in Assamia language and Tripuri language, they call it as Autenga. Why did they call it as Autenga? Tenga is something sour, very khatta. And Om Tenga, basically Om. Om word. My name is also Om. I was interested. Show me how it can be Om. So then they cut it open. Horizontally made a cut. And when they opened it, it was having really O. One can verify himself or herself if you see. So it's called Autenga. But it's also the food for elephants. So even elephant apple, Dalinia indica. We have many endemic plants which are restricted to Andamans. Mango has also been mentioned by Valmiki Ramayana. But we have some endemic species, for example, Mangifera andamanica, which is found only in Andamans. Likewise, they have also mentioned wild mango, which is growing in Bilawar and Akhnur. Locally, we call it as a mamb, because for mango, Dogri name is amb. And from this is another wild mango, Spondia spinata, which is called as mamb. Or another name is mada, because in Hindi, this is called amada. But Valmiki has mentioned as amrataka. Amrataka. It was, earlier it was called a Mangifera pinnata. Because leaves are pinnate. But then modern taxonomy said all simple leaved Mangifera should be Mangifera, conserved genus. But those have the pinnate leaves should be segregated. So because it has pinnate leaves, leaves are not simple in case of Spondia. So it has been put segregated into another genus, Spondias. But this has also found mention in Valmiki's Ramayana. And this is still edible. People are using it as pickle, and that particular plant. And more plants, one is this plant. This was also mentioned by Valmiki in that. Means they were growing somewhere. So whatever they saw, and they have full all the seasons. Even the spring beauty, the summer beauty. So whatever those plants are available in that area, from Ayodhya, Chitrakoot, Dandkaranya, this Panchabati, and down below, which is that, here was Sugriva's land, Kishkinda, and then ultimately Sri Lanka. So this plant has been mentioned under the name Priyangu. Priya means loving, है ना, affectionate, and Angu means जिसका कोई part अच्छा हो. And that is the earlier interpretation. And then the botanists also named it like that, Calicarpa. Cali means beautiful, carpa means fruit. Its fruit is very useful and also looking very elegant. It is a pearly white. So it has been named Calicarpa. And because the fruit has been mentioned as commonly in English as berry, and it is beautiful, so it has also been known as beauty berry. Beauty berry. Or it is also known as pearl beauty, because the fruit is like pearl. So, two English names, but they are after Valmiki's Ramayana. They named first Priyangu, and then it has been named as beauty berry or pearl beauty. Otherwise, Calicarpa. So, this plant is also here. So, we'll move around and see more plants. मैं बता रहा था, in 1988, I brought these two plants. One is Olea paniculata, presently called Australian olive with broad-leaved olive. And another plant which I brought the same day, this was Mahua, Maduka langifolia,
or sometimes called Maduka latifolia, mahua. And this tree was also mentioned by Valmiki in the Ramayana, epic Ramayana. And even flowers were eaten by Sita Maya. This has not been mentioned, I couldn't see. But this Maduka latifolia, this stands mentioned even in Valmiki Ramayana. And even this babool, which is now, earlier what we used to refer as acacia, now it has two genera. One is Vachelia, another is Senegalia. So can you appreciate, can you tell me why you, what is the characteristic feature of Vachelia and this Senegalia? Can you tell? Why they have segregated? Because as a forester or as a botany student, it was very easy for me to remember Acacia nilotica and Acacia catechu. Because they focused on even molecular and other evidences, but basically for a forester is inflorescence. If inflorescence is spike-like, elongated spike, they should be clubbed in Vachelia. Not Vachelia, Senegalia. Yes. And if they have a cymose head, circular, round, they should be put under which one? Vachelia. So this is now Vachelia nilotica. And for the same reason, Acacia catechu is no more Acacia catechu, now it is Senegalia catechu. Even our this toothbrushing wala kya hai wo? नहीं जो हमारा क्या क्या ना अकेशिया का ही मोडेस्टा है जो दैट इज सेनेगालिया मोडेस्टा क्या बोलते हैं उसको दातुन करते थे पहले बिकती थी जम्मू शहर में क्या है यार जैसे खैर होता है ना ऐसे ही दूसरा होता है क्या होता है वेरी कॉमन ट्री और टाली नहीं और नीम कहाँ यार यू आर फॉरगॉटन एवरीथिंग अकेशिया मोडेस्टा सेनेगालिया मोडेस्टा जिसको बोलते हैं फ्लाई I am forgetting. You have so many trees in this near Central Library. फुलाई के फुलाई का जो पेड़ है that is very useful toothbrush. जिसकी toothbrushing मैं करता था in the earlier days. And it used to be sold in the old city. अब no more. So that is also now Senegalia, named after Senegal is the country nation in Africa. Senegalia दो हो गए फिर आपके familiar. एक कैटिचू, another is modesta. एक को खैर कहते हैं एंड खादीरा अंडर द नेम खादीरा इट हैज आल्सो बीन मेंशन्ड बाय वाल्मीकि इन द एपिक रामायण खादीरा पर जो दूसरा क्या बताया दूसरा फुलाई हैज नॉट बीन मेंशन्ड परहैप्स इट वाज नॉट देयर आई डोंट नो नेक्स्ट yes when I see this there was a Pampa lake in Kishkinda area region that is in present day Karnataka. So Valmiki has also mentioned some of the beautiful lily ponds, lotuses under the name Pamposh or Kamal, then Utpal, Kumudini, Kumud, different kinds of lilies it stand mentioned. So एक और बात आपको बताएं कि Lord Rama mentioned or made Sita familiar with the surrounding flora, but Sita was more inclined towards fauna. She had love for fauna. Whatever Rama was telling about plants, okay. But ultimately she was focusing on these beauties. Spotted deer, hiran, squirrel, Funambulus, Palmarum, जहाँ पेनेटाई क्या species है. उसके ऊपर भी ये story कि Sita used to caress the body of squirrel like this. And you have these lines, 3 lines on the body of squirrel, Funambulus. फिर स्पॉटेड डियर एक्सिस चीतल उसको लेके आओ इट वॉज नॉट फॉर किलिंग शी जस्ट वांटेड टू फॉन्डल विद प्ले विद द डियर है ना हंस की बात आती है बार हेडेड गीज नाउ वी हैव एट घराना दे आर कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया मंगोलिया साइबेरिया एंड दैट हैज आल्सो फाउंड इंक्लूजन इन द वाल्मीकि रामायण हंस देयर इज अनदर ब्यूटीफुल उसको बोलते हैं रूडी शेल्डक हिंदी में हम कहते हैं सुरखाब कोई बहुत कहे ये जो है शादी विवाह में समटाइम्स यू हैव ए मैच and sometimes girl or boy whatever say no not of my standard or my match है ना छोटा यार रंग ऐसा है वैसा है whatever so then तुझे क्या सुरखाब के पर लगे इसका मतलब होता है कि are you that super as beautiful as the सुरखाब is रूडी शेल्डक इसका भी जिक्र वाल्मीकि रामायण में है दिस पर्टिकुलर सो फाना का भी जिक्र है लेपर्ड का है टाइगर का है लायन का है और दे हैव मेंशन इन किष्किंधा एरिया कर्नाटका में जो है जहां पे लाइन और टाइगर दोनों के मेंशन है इन द सेम लोकेशन जो आज नहीं मिलते हैं यू फाइंड टाइगर बट नॉट लायन लायन स्टैंड डेसिमेटेड फ्रॉम दैट लोकेशन अब लायन गुजरात में ही गिर में ही है
तो वहां नहीं है। नील गाय का नाम आता है, नील गाय, बॉज एलेफस ट्रैगोकैमलस, गूंद कहते हैं डोगरी में हम, उसका नाम आता है। तो फ्लोरा फाना, इवन रिश, जैसे जामवंत है तो वो तो भालू के ही अवतार माने गए। वराहा, वराहा का नाम आता है। वराहा क्या होता है? बारामूला, मूल बना टूथ, दांत, दांत मारा था विष्णु ने इन दी इनकॉर्नेशन ऑफ वराहा, बोर, जिसको वराहा बोला गया संस्कृत में, जामवंत का भी रूप वो है। उन्होंने ऐसे डिग किया, हालांकि देयर इज अनदर थ्योरी कि वहां पे अर्थक्वेक आया था और हिल गया पहाड़ और वहां से गॉर्ज होके वो सतीसर लेक का पानी ड्रेन हो गया, तो ऐसे हो गया। बट एवर, बट बारामूला नाम यू कैनॉट चेंज है। वहां बहुत बड़ा एक साइंटिफिक होगा, उसको नोबेल प्राइज भी मिले होंगे। कैन ही चेंज द नेम ऑफ बारामूला? नो, नो, बिकॉज 4000 5000 से नाम बारामूला है। नो बॉडी कैन चेंज। पामपोश, पामपोश मैंने कमल, कमल के नाम है पामपोरा, तो पूरा है तो है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आइए नेक्स्ट। सो अनदर प्लांट विच स्टैंड्स मेंशन्ड इन वाल्मीकि रामायण, शिरीष। शिरीष इज सरी, सरी इज एल्बीजिया लिबैक। पता नहीं यहां पे है कि नहीं है, होगा कहीं पे। अनदर प्लांट इज सुखचैन, वो दिख रहा है आपको, पोंगामिया पिनाटा, नॉट दैट वन, दैट वन, पोंगामिया पिनाटा, नाउ कॉल्ड एज माइलेटिया पिनाटा, ए सुखचैन करंज। It has been mentioned in Valmiki Ramayana. Even this neem, margosa, Jedirecta indica is also, even this Anthocephalus kadamba, kadam, even this Lagistreamia speciosa, jarul, this has also found inclusion in Valmiki Ramayana. And kadali, musa, musa sempertium, जो ये है paradisiaca, basically what we eat in the market, that is Musa paradisiaca. But we also have endemic bananas, and much of a banana diversity is found in Kerala, also part of Maharashtra. So you have the plants, for example, Anseti superbum, एक allied genus है जो अनलाइक दिस है। इसमें तो एक होता है ऐसे एक स्टेम, सो कॉल्ड सूडो स्टेम, और ऊपर होती है इन्फ्लोरेसेंस, उसमें नीचे से क्लम्प आ जाती है ऑफ दी स्टेम्स, जो एनसेटी, इसलिए उसको जीनस भी म्यूसा नहीं दिया, अलग जीनस है एनसेटी सुपरबम। और इसी तरह से यू हैव अदर, एक अंडमान में है, उसका नाम है म्यूसा परमजीतियाना। परमजीत वाज द डायरेक्टर ऑफ बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन हिज ऑनर, परमजीतियाना। सो दिस इज अनदर मार्गोसा ट्री फाइंड्स इंक्लूजन, एंड दैट आल्सो कदम्ब। ये हैरानी की बात है, हाउ इट हैज फाउंड इंक्लूजन इन वाल्मीकि रामायण, क्योंकि है तो हमारा ही है, ये नॉर्थ ईस्ट का है बेसिकली, बर्मा का, इंडो बर्मा का प्लांट कहा जाता है इसको। इसको नाम है माइलेटिया ओवेलिफोलिया, और इसको ऐसे बोलते हैं, मोल मीन रोज वुड। रोज वुड किसका नाम है? डेलवर्जिया लैटिफोलिया का, वेरी गुड टिम्बर, साउथ इंडियन हमारा है, उसको बोलते हैं हम रोज वुड। तो शायद इसकी वुड क्वालिटीज भी होंगी वैसी, बट इट वॉज नेम्ड एज अंडर सम नेम इवन इन बाय द वाल्मीकि रामायण। तो बड़ी हैरानी होती है कि इतनी ज्यादा, इतना ही वॉज राइटिंग द स्टोरी ऑफ रामा, या ही वॉज डिस्क्राइबिंग दिस फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। इट इज वेरी वेरी अमेजिंग नॉलेज। हाँ, ये क्राइनम है, सुख दर्शन। दिस इज ऑल्दो इट इज अमेरिकन, हमने इसके लिए खूबसूरत नाम दिया है सुख दर्शन, है ना। और फ्यू डेज बैक वी हैड द मकर संक्रांति, सो देन देयर यू कैन से द सूरज के साथ भी, तो देयर आर सो मेनी प्लांट्स associated with sun god. One is Calotropis, Calotropis procera, इसको भी सन के साथ जोड़ा जाता है। और सनफ्लावर को नई जो मॉडर्न जनरेशन है, दे आर एसोसिएटिंग, बट बेसिकली दिस इज नॉट अवर प्लांट। सनफ्लावर हैज कम फ्रॉम अमेरिकन कॉन्टिनेंट। जिगेंशिया भी है सर यहाँ पे? यस, नॉट लगाया है। अच्छा, इसका भी जिक्र आता है, ये जो है जट्रोफा, ये भी था वहां पे। और इसका रामा के टाइम में, एपिक में, मोस्टली इसके ज्योति जलाने के काम में, इसका जो सीड ऑयल होता था उसमें थोड़ी राम की ज्योति, तो कुछ लोग इसको राम ज्योति भी कहते हैं, कुछ इसको रतन ज्योति कह देते हैं। बट बायोडीजल का भी इसका वो है, बायोडीजल। ये जो है, इसका नाम मुझे मिला नहीं, पर होना चाहिए। समहाउ ये कुडंट, ये अपनी वो है हरड, हरित की, होना तो चाहिए, बट हो सकता है मुझे आइडिया ना हो, तो मस्ट हैव बीन मेंशन्ड। लेकिन विविध का आता है, जो दूसरा है ना भेड़ा, टर्मिनेलिया बेलरिका, उसका नाम है, तो टर्मिनेलिया चेबुला कैसे रह सकता है? ये शैलपुत्री गॉडेस के साथ जुड़ा हुआ है, हो सकता है मेरी इग्नोरेंस हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस।
But another tree which they have mentioned, even this Shionak, Patla, these are Dashmul trees. तो इनका भी जिक्र है, ये लंबी लंबी फली वाला एंटीकैसरस ट्री जिसको बोलते हैं ओरोजाइलम इंडिकम। और इसके आप देखिए जो इसकी स्टॉक्स होती है ना, लीफ पिटियोल, दैट लुक्स लाइक बोन। जस्ट अप्रिशिएट, कम हियर, दिस इज द ब्यूटी हाउ द डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स दे फाउंड के दिस विल बी गुड फॉर अवर बोन्स, इसलिए बिकॉज इट इज रिच इन कैल्शियम। और दे इंक्लूडेड इन च्यवनप्राश। बड़ी लंबी चौड़ी पीएचडी क्या करनी है और रिसर्च क्या करनी है, उस वक्त तो थी भी नहीं यूनिवर्सिटीज, तो उन्होंने इसको डाल दिया। और स्टिल वी एग्री, और मॉडर्न जो एनालिसिस है दैट सपोर्ट्स दिस कि दिस इज यूजफुल फॉर अवर बोन्स। सो इसलिए इसका भी बहुत, और इसको 10 मूल 10 रूट्स। पता है आपको कौन से 10 पेड़ हैं? 5 पेड़ हैं और 5 छोटे हैं। बताइए इनको, मैडम बताएंगे। अभी बराबर याद नहीं, बेलिना और बोरिया है ना ना, हिंदी संस्कृत के नाम बताएं हमें। सर बताएंगे सर, फिर लिखो लिखो, एक बेल है, ईगल मार्मिलास, बिल्बा बोलते हैं, बेल बिल्बा। एक हो गया शियोनाक, ये ओरोजाइलम इंडिकम 2। एक हो गया पाटला, स्टीरियोस्पर्मम स्वाबियोलेंसिस, यहाँ आजकल उसका भी नाम बदल गया, स्टीरियोस्पर्मम कैलोनोइडस, क्या बोलते हैं उसको, पाटला, पड्डल भी बोल देते हैं डोगरी में। 3, चौथा है मेलाइना आर्मोरिया, मैंने अभी गोपेश जी को दिखाया, वो पहले ही था वहां पे, मेलाइना आर्मोरिया गंबारी। और उसको पता कासमारी, और कितनी गलत होती, कास खांसी टाइप है, कास रेस्पिरेटरी ट्रबल है, उसके साथ है, उसको मारने वाला पौधा है वो, मेडिसिनल। लेकिन उसको बहुत से लोगों ने मिस इंटरप्रेट करके आजकल कहते हैं कश्मीर ट्री। इट इज नथिंग विद कश्मीर ज्योग्राफी, कासमारी है। तो यहाँ आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स हैं, इनके सामने तो हम अपने आप को करेक्ट करें। इट नथिंग टू डू विद कश्मीर, इट इज विद कासमारी। तो एक और रह गया, एक और, उसका नाम अग्निमंथ या अरनी। एंड अरनी स्टैंड मेंशन्ड बाय वाल्मीकि इन द एपिक रामायण। पाटला आल्सो, स्टीरियोस्पर्मम स्वाबियोलेंस, बेल आल्सो। मुझे लगता है सब के सब ही। कौन सा छूटा? ये भी हो गया। गंबारी का मुझे आया नहीं जिक्र, हो सकता है मैंने मिस किया हो। गंबारी को छोड़ के बाकी 4 मुझे दिखे। अग्निमंथ पता है ना आपको? खासकर उन्होंने दूसरा प्लांट, एक होता है प्रेमना सेरेटिफोलिया और दूसरा है प्लांट, उसको बोलते हैं क्लेरोडेंड्रम फ्लोमाइडस। तो वाल्मीकि रामायण में जो जिन्होंने एनालाइज किया है, पीएचडी की है और माना है, वो कहते हैं ये क्लेरोडेंड्रम फ्लोमाइडस की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है प्रेमना की बात ना की हो, बिकॉज दोनों को ही अग्निमंथ कहते हैं। हाँ, नहीं, हम 4000 पुरानी बात कर रहे हैं। उस वक्त तो था नहीं ये प्रेमना और क्लेरोडेंड्रम, ये नाम ही नहीं थे, है ना। और बीच और 5 छोटी वनस्पतियां, 5 पेड़ हुए ना, 10 पूरे करने हैं ना, तो करो। शालपर्णी, प्रश्नपर्णी, कंटकारी के 2 भेद हैं, कौन कौन सी है? भृत, कंटकारी करके, वो उसमें कौन कौन से? 4 ये, और एक गोखड़ू, गोक्षुर, गाय। देयर आर प्लांट्स व्हिच हैज बीन नेम्ड आफ्टर काउ, सो मेनी। एक प्लांट है गा जबान, कश्मीर में तो गा जबान, गौ की जुबान, बर्ड हैज कम फ्रॉम अरेबिक एंड पर्शियन। गाय की जुबान, टंग ऑफ द काउ, लाइक लीफ, उसका लीफ लंबा सा होता है। वो गौ जवान बिगड़ते बिगड़ते घाजवान, कोई काजवान बोल देता है, हम रतन जोत कहते हैं उसको। दैट इज अर्निबिया बेंथीनी, ठीक है। किसका? हाँ, बताने लगा मैं चला गया ना उधर, ग से कहा, गोखड़ू की बात चल रही थी बेसिकली। दिस इज ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, गोक्षुर है बेसिकली, गौ का खुर से बिगड़ते बिगड़ते हमने डोगरी में गोखड़ू बना दिया। बट एवर, इवन इन राजस्थान देयर इज अनदर प्लांट विच आई हैव नॉट सीन, उसको बोलते हैं ट्रिबुलस राजस्थान, विच इज थ्रेटन्ड, हाईली एंडेंजर्ड है। एक ये हो गया, कंटकारी के 2 भेद हैं, एक है सोलेनम इंडिकम, बड़े वाला है, वो इतना ऊंचा हो जाता है। एक दूसरी है छोटे वाली, जिसको बोलते हैं जेंथोकार्पम, आजकल वर्जीनियनम बोलते हैं, सोलेटेंस भी बोलते थे, सालेनम, वो है। और शालपर्णी और प्रेशरपर्णी रह गए 2, इनके भी सुन लो। एक का नाम है डेस्मोडियम गेंजेटिकम, लेकिन आजकल उसका भी नाम बदल दिया। बस चलो, डेस्मोडियम गेंजेटिकम। साल क्या होता है? शोरिया रबिस्टा, उसकी तरह पत्ते मिलने से उसका नाम बता दिया, साल के पत्तों वाली। साल नहीं है अपने आप में, वो एक वनस्पति अलग है। तो दूसरे है प्रश्नपर्णी, यूरेरिया पिक्टा। तो 5 हो गए कि नहीं भाई? काउंट करो, 10 हुए कि नहीं? ऑल दीज 10 मेंशन इवन बाई वाल्मीकि रामायण। और सबसे बड़ी बात है, वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र आता है, जो सीताशोक है। ये देखिए, ये क्या है पेड़? सीताशोक, सारका अशोका, सारका इंडिका इसको कहते थे पहले, लेकिन आज ज्यादा टेक्सोनॉमी हो रही है ना,
तो अब वो कहते हैं सारका, जो हमारी स्पीशीज है इंडिया की, दिस इज नॉट इंडिका, दिस इज सारका अशोका। तो अच्छी बात है, हमारा पुराना नाम अशोक ही था, शोक को दूर लेने वाला प्लांट, माने विच टेक्स अवे द ग्रीफ। सो इट वाज ट्रांसलेटेड बाय ब्रिटिशर्स एज सॉरोलेस ट्री। वहां हमने बोला पारिजात, निक्टेंथिस आर्बिट्रिस से उन्होंने बोला ट्री ऑफ सैडनेस, उसका अपोजिट उसको बोला ट्री ऑफ क्या, सॉरोलेस ट्री, सॉरोलेस। मैं क्या करते हो, और हाउ ऑल पार्ट्स, बार्क, रूट, सीड, लीफ। कहाँ गए वो गोपेश जी? इसकी अशोक बटी, अशोक अरिष्ट, यस अशोक अरिष्ट। पर उसमें सिर्फ यही नहीं होता होगा, कुछ और भी डालते? नहीं, अलॉन्ग विद सम अदर इंग्रेडिएंट्स। मेन ये है, जैसे च्यवनप्राश में मेन आंवला है, बट दैट डजंट मीन कि 100% आंवला, उसमें 41 और भी डाली जाती है। तो आप जरा थोड़ा इस पर रोशनी डालेंगे। अशोक अरिष्ट किस पर्टिकुलर बीमारी के लिए यूज होता है? This is also one of the. तो रावणा को हम देते हैं, रावणा के एक साइड हो सकता है एब्डक्शन के लिए हम कह रहे हैं, लेकिन उसने भी तो उसके लक्ष्मण ने उसकी बहन का नाक जो है काटा था। अब काटा था या इंजरी की थी, इसीलिए जगह का नाम है नासिक, गोदावरी के किनारे। जगह का नाम देखिए नासिक। और एक मेंढक मिला जुरासिक टाइम का, तब भी हमने नासिका से ही उसका नाम रखा, नासिका बेट्रैकस। 2003 में पहली बार एक ऐसे मेंढक की खोज हुई जो रात को ही निकलता है 15 दिन के लिए। तो पूरे साल तो आप कहां ढूंढते फिरोगे उसको, उन 15 दिनों में, और वो भी आधी रात को, और वो भी उस रेन फॉरेस्ट में, जब मानसून का वक्त होता है, बारिश हो रही है, उसमें कौन जाएगा? तो एक टैक्सोनोमिस्ट थे, ग्रेट टैक्सोनोमिस्ट, जिसका नाम है दो थी नहीं पत्नियां कृष्ण की, एक थी सत्यभामा, हाँ उसका नाम भी सत्यभामा है। देखिए सत्यभामा पटनायक, सत्यभामा बीडी क्या है, एसडी बिजू, सही क्या नाम है उनका, जो टैक्सोनोमिस्ट जिन्होंने बॉटनी में पीएचडी की टैक्सोनॉमी के ऊपर, साउथ इंडिया के हैं, केरल के, क्या नाम है, एसडी बिजू। और देखिए एक टैक्सोनोमिस्ट, कोर टैक्सोनोमिस्ट, सारी उम्र बॉटनी पढ़ी, पढ़ाई भी की, पीएचडी की डिग्री, नाउ ही इज नोन वर्ल्ड राउंड हर्पेटोलॉजिस्ट। और उसने नया फ्राक खोजा केरल से ही, जिसका नाम दिया नासिका के ऊपर, नासिका बेट्रैकस हाइड्रेंसिस, नॉट लिविंग फॉसल उसको भी माना जाता है। नॉट ओनली दैट, उसने इतने फ्रॉग्स निकाले हैं 10-20 विच आर न्यू टू द साइंस, एंड ही वाज यस्टरडे ही वाज ए बॉटनिस्ट, नो ही इज ए हर्पेटोलॉजिस्ट। तो ये आपकी पैशन के ऊपर है कि आपकी पैशन कौन से रंग लाती है। अच्छा, ये प्लांट एक और है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, विच इज आल्सो द लार्वल होस्ट प्लांट फॉर बटरफ्लाई। इसको बोलते हैं प्लम्बैगो, चित्रक। सफेद चित्रक है, नीला चित्रक होता है और लाल होता है हमारे पास, लेकिन ये वाला सफेद है। और चित्रक क्यों बोला गया इसको, इसमें रोशनी डालें। गोपेश जी भाग जाते हो आप, चित्रक नाम क्यों दिया? पेंटेड क्या है? इज इट ए स्पॉटेड सीड्स हैं या क्या कोई हिस्सा इसका है, तभी इसका नाम चित्रक है। चित्रक में पेंटेड, अब पेंटेड क्या है मैंने भी देखा नहीं गौर से, इसका कोई पार्ट है? वैसे तो ये बहुत शार्प है, इसके जो रूट है ना जी बहुत तेज है। ओके, तो अगर आप लगा दो अच्छा तो वो मार्क हो जाता है, जैसे कि किसी ने मारा हो। अच्छा, तो वो ऐसे फॉल्स मार्क बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके ओके। रेड भी कहते हैं कि शायद इसकी रेड है, रेड मार्क हो जाता है, रेड मार्क हो जाता है। हो जाता है। ओके, तो पता नहीं क्यों नाम इसका है चित्रक, तो डोगरी में इसको चित्रा बोला जाता है। क्या है ये? चित्रा, प्लम्बैगो। तो एक बटरफ्लाई जो इसी के ऊपर अंडे देती है, और इसके आती भी है। अब हम इतने लोग हैं तो बेचारे है भी नहीं, क्योंकि फूल होंगे तो आएगी ना। उसका नाम ही है प्लम्बैगो ब्लू। उस बटरफ्लाई का नाम क्या है? प्लम्बैगो ब्लू। पिछली बार मैं आया था, एकांत था, इतने लोग नहीं थे और फूल खिले थे, तो वो मिली थी मुझे, तो आज मिलने की चांस नहीं है। अच्छा, कैम्फर का नाम भी दिया हुआ है वाल्मीकि रामायण में, कैम्फर का, कपूर वृक्ष। पहले इसको सिनामोम कैम्फोरा कहते थे, अब कैम्फोरा ही जीनस बना दी। और एक और प्लांट जो वाल्मीकि रामायण में ये है, उन्होंने इसको कचनार नहीं लिखा, कोवी दारू लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है कोवी दारू? कौन सा ये भाषा है, संस्कृत? तो इसको कोवी दारू कहते हैं। अदरवाइज हम कांचनार, कचनार, कतरियाड़ बोलते हैं इसको। तो इसका भी जिक्र जो वाल्मीकि रामायण में है। और एक और प्लांट है जो मैं जरूर दिखाना चाहूंगा, वो है ना वो वाला माधवी लता। माधवी जो है प्रोफेसर यशपाल शर्मा की मैडम है ना? आइए, माधवी। हालांकि ये बिल्कुल लता नहीं है,
थोड़ी सी ये, लेकिन ये क्लाइंबिंग हैबिट थोड़ी शो करती है, जैसे ना अगर उसको आप नहीं ट्रिम करो तो ये प्लांट जो है ना, इट हैज लॉट ऑफ फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, हिप्टेज। और जो ही मैं आया तो गोपेश जी ने नाम लिया कि हेलीकॉप्टर, इसका फ्रूट जो है हेलीकॉप्टर की तरह उसको विंग्ड होता है, विंग्ड फ्रूट होते हैं। और माधवी लता, माधव किसका नाम है? कृष्णा का। तो रामायण और महाभारत दोनों की बात हो रही है, होते होते महाभारत छूटी गया पीछे, तो उसमें भी पांडवों ने अपने शस्त्र रखे थे, वो शमी का पेड़ ही था, प्रासोपेस एरिया। फिर अर्जुन ट्री, अर्जुन हिमसेल्फ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है महाभारत में। और अर्जुन का नाम, और उसके साथ ये माधवी लता, क्योंकि ये स्प्रिंग में इतना खुशी देती थी सीता मैया को, जब ये फ्लावरिंग में होती थी तो वो बहुत इसको पसंद करती थी सीता मैया। और हिप्टेज और सिंदूर, ये मार्केट का सिंदूर नहीं होता था, ऐसे भी बनवास में कहा मिलना था, तो सिंदूर कौन सा प्लांट का लगाती थी मैया, सीता मैया? वो लगाती थी मेलोटस का, जिसको संस्कृत में बोलते हैं कंपिलक। कंपिलक, और कंपिलक रेप्यूटेड मेडिसिनल ट्री माना जाता है आयुर्वेदा में, है ना। वर्म इन्फेस्टेशन को मारने के लिए सिंदूर का रंग कपड़ों को भी दिया करते थे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है मेलोटस फिलिपिनेंसिस। एक और उन्होंने नाम दिया सिंधुवार। सिंधुवार वाइटेक्स निगुंडो, निर्गुंडी ही है ना। सिंधुवार करके लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में। क्या लिखा हुआ है? सिंधुवार। तो कुछ लोगों ने उसको माना कि ये वाइटेक्स निगुंडो है, तो कुछ कह रहे हैं वाइटेक्स अल्टीसिमा है। अब स्पीशीज कोई भी हो, हमारे इधर तो अल्टीसिमा होता नहीं, लेकिन किष्किंधा और उस तरफ शायद अल्टीसिमा ही होता हो, तो पता नहीं, तो उसका भी जिक्र आया। और इसका नाम, ये जो आप दे, इसका नाम लिखा हुआ है मुचकुंद। ये जो है जिसको हम कनक चंपा बोलते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में इसका नाम है मुचकुंद, टेरोस्पर्मम एसरिफोलियम। और इसका नाम एक और है कर्णिकारा। कर्णिकारा भी इसका नाम लिखा हुआ है। एक बड़ा होता है ना, हाँ, बहुत बड़ा। एक और ट्री का जिक्र आता है वाल्मीकि रामायण में, अश्वकर्ण। वो मैंने आज ही सीखा आपके लिए, मैं भी स्टडी कर रहा था कि मुझे आ जाए कुछ नया। अश्वकर्ण, अश्व घोड़े को, कर्ण हो गए कान, घोड़े के कान वाला पत्ता रखता है जो पेड़, और वो जहां वहां होता, यहां नहीं होता। डिप्टेरोकार्पस टर्बिनेटस, गुर्जन भी बोलते हैं उसको। डिप्टेरोकार्पस एक ट्री होता है, जैसे साल होता है ना, उसी फैमिली का है वो भी, और वो वहां पे होता होगा। तो एक उसका भी उन्होंने जिक्र दिया। एक और प्लांट है, क्या? नहीं, किष्किंधा की बात हो रही है, ये तो यूदिया से नीचे चले गए। नहीं, डिप्टेरोकार्पस इधर है ही नहीं। ये नॉर्थ ईस्ट में है, अंडमान में है, साउथ इंडिया जहां रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां होता है। बहुत बड़ा ट्री है ये, डिप्टेरोकार्पस बोलते हैं इसको। और एक और प्लांट है जो आप आम देखते हैं जम्मू में, जिसको बोलते हैं अमलतास, हम करंगल भी बोलते हैं। मैं हैरान हो जाता था, करंगल जैसे कर मैंने हाथ, उंगलियां मैं ऐसे सोचता था, बच्चों की तरह सोचता रहता हूँ, ये शायद इसकी जो पॉड्स हैं उंगलियां जैसी तो नहीं दिख रही हैं। लेकिन मुझे पता चला संस्कृत में वाल्मीकि रामायण में इसका नाम है कृतमाला। पता नहीं कृत कार्य को कहते हैं या क्या है, अब हिंदी के तो संस्कृत के आप पंडित हैं। कृतमाला करके नाम है केशिया फिस्टुला का। और वो जब खिल जाता था तो फिर कैसे हो सकता था राम को, सीता को, लक्ष्मण को दिखे ना और उसकी बात ना हो। और फिर एक और प्राण किंशुक, किंशुक का भी नाम है। किंशुक क्या है? ब्यूटिया मानोस्पर्मा। पलाश, ढाक, ढाक के 3 पात। और ढाका जो सिटी है बांग्लादेश का कैपिटल सिटी, ढाका का नाम ढाक से है। और पहली लड़ाई जो अंग्रेजों ने जीत ली सिराजुद्दौला से, नवाबा बंगाल को हरा के, वो कौन सी थी? बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की लड़ाई। तो प्लास शब्द भी बंगाल में जगह है वेयर लॉट ऑफ ब्यूटिया मानोस्पर्मा ट्रीज ग्रो करते थे। तो इसके साथ ही आपको शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर।